Assalamu alaikum. Today is the first lecture of PBG 401 321 and the credit are they are 3 for total and 2 for theory and 1 for practical. And now we will discuss the cell cycle in the first lecture, because in practical starts with the first lecture is the cell cycle, and we will cover the cell cycle, what is meiosis, what is mitosis, and what are the differences and similarities in the meiosis and mitosis. Then next is the gametogenesis in plants, megasporogenesis and microsporogenesis. Then first of all we will study the cell cycle. There are 3 steps in the cell cycle. And the cell cycle, what is the cell cycle? It is a regular sequence of growth and division of eukaryotic cells, because prokaryotic cells undergo through the binary fission. Binary fission is then other process for the division of the cells, but in eukaryotic cells, those have the proper nucleus and nuclear walls, they go through the cell division, and cell division is divided into the 3 main stages. Now what are those 3 main stages? They are interphase. What is the interphase? Interphase in which cell mature itself, make the copies of its DNA and prepare for the cell division. Then the mitosis, one copy of DNA is distributed into each other, and next similar copy is produced in the mitosis, and in meiosis number of chromosomes they remain the half. And then next is the cytokinesis. What is the cytokinesis? When the nuclear material or hereditary material is divided into the meiosis or mitosis, then remaining cytoplasm is also divided, is known as cytokinesis. Cytokinesis is the division of cell cytoplasm, and different cell organelles distributed into the 2 different produced cells. And first the interphase. Interphase is then also divided into the 3 main steps. What are the main steps? G1 phase, S phase and G2 phase. These are the different sub stages of interphase. The first one is the G1, which is also known as growth phase. Cell prepare itself, जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जब उसने अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है तो फिर ही वो काम कर सकती है. इसी तरह सेल जो है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द ग्रोथ. विच टाइप ऑफ ग्रोथ? फॉर द डिवीजन ग्रोथ. तो डिवीजन के लिए वो क्या करता है, अपनी जो प्रोड्यूस है उसको डबल करता है. फॉर एग्जांपल जो सेल का साइज होता है उसको एनहांस करता है, उसको लार्ज कर देता है. सेल प्रोड्यूस ऑल द स्ट्रक्चर इट नीड टू कैरी आउट इनटू इट्स फंक्शंस. then it is double its cycle. These are the different steps of the G1, which is known as the growth phase, and second step of the interphase is S phase, which is known as synthesis phase. And we can use the easy language, that is synthesis phase, and cell makes it copies of DNA. जो डीएनए ने जब रेप्लिकेट करना है तो उसने सिंथेसिस फेज के अंदर अपनी एक डबल कॉपी पहले ही बना लेता है, जो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होनी होती है. तो इसको हम फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं. क्यों? फोटोकॉपी मशीन के अंदर क्या होता है, सेम जीरोक्स कॉपी जो है वो निकल आती है. लाइकवाइज इन सिंथेसिस फेज सेल मेक्स इट सिमिलर कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स. एंड देन थर्ड विच इज द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज इज प्रिपरेशन. सेल प्रिपेयर टू डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल सेल ने सारी चीज़ें बना ली हैं, उसके अंदर उसके साइज डबल हो गया. सेकंड फेज सिंथेसिस के अंदर उसने अपने क्रोमोसोम को भी डबल कर लिया. देन वो अपने आप को फुली प्रिपेयर कर चुका था, विच इज़ नोन एज G2 फेज. और G2 फेज के बाद ही जो मियोसिस माइटोसिस होती है,
ये इंटरफेज मियोसिस से पहले भी होती है और माइटोसिस से पहले भी होती है, ठीक है ना। ये प्री रिक्विजिट्स हैं सेल डिवीजन के, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। Next one is a mitosis. There are two different stages of cell division. One is meiosis and other is mitosis. Now first one we will study the mitosis. During mitosis, cell is copied its genetic material which separate from the cell and split into the two cells. And this allow the cell's genetic material to pass on the two different new cells जो उसके similar cell बनते हैं। डिफरेंट मैंने इसलिए कहा कि वो दो बन रहे हैं, एक से दो, वो तो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल दैट वुड बी सेम। द रिजल्टिंग जो डॉटर सेल्स होंगे दैट दोज विल बी सिमिलर। तो डीएनए जो है ना, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, आपको पता है क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम जो दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन का जो पीस है ना, जीन का पीस है, उसको अगर हम जीन को ओपन करें तो वो डीएनए से बना होता है। और डीएनए क्या करता है, डीएनए के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। जिस तरह हमने जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़ा था कि जो जीन्स हैं ये जीनोटाइप है दैट कंट्रोल द ट्रेट एक्सप्रेशन। देन द नेक्स्ट देयर आर द 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। कौन कौन सी हैं इसके लिए? सबसे पहले आपने याद रखना है PMAT। PMAT, P stand for prophase, M stand for metaphase, A stand for anaphase and T stand for telophase. PMAT. Okay, this is known as PubMed in you can say easy word। जिस तरह हम लोग घर के अंदर चीज़ें रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग कह देते हैं कि हम इस चीज़ तरह याद करें चीज़ को, इस तरह चीज़ को याद रख रहे हैं, तो इस तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अच्छा, नंबर 1 प्रोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो, न्यूक्लियस की जो वॉल है ना, न्यूक्लियर वॉल जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं साइटों पे या साइटोप्लाज्म के अंदर, वो फ्लोट होकर अपने आप को अपीयर करना शुरू कर जाते हैं। क्यों स्पिंडल फाइबर शो होना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि स्पिंडल फाइबर के ऊपर जाके क्रोमोसोम ने अटैच होना है। जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने जाके स्पिंडल फाइबर के ऊपर अटैच होना है और देन स्पिंडल फाइबर्स ने अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करनी है। देन स्पिंडल फाइबर अटैच टू इट्स सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये प्रोफेज के अंदर आता है कि न्यूक्लियर वॉल डिसअपियर हो गई, जो न्यूक्लियर वॉल है वो डिसअपियर हो गई, स्पिंडल फाइबर साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आना शुरू हो गए, स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं। देन सेकंड है मेटाफेज। पमेट के अंदर हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मेटाफेज के अंदर क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स आर पुल्ड एट द सेंटर ऑफ सेल, कि ये एक सेल है ना, सेल के सेंटर के ऊपर आके जो इनका सेंट्रोमियर के अंदर आके स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं एट द सेंटर ऑफ सेल। तो वो लाइन एक बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है ना, तो दरमियान में आके क्रोमोसोम जो वो अटैच हो जाते हैं। ये किसके अंदर है? मेटाफेज के अंदर है। देन नेक्स्ट है एनाफेज। अब हमने बात की कि मेटाफेज के अंदर वो दरमियान में आके अटैच हो गए, एनाफेज के अंदर वो उनकी दोनों पोल्स की तरफ जो है ना वो मूवमेंट शुरू हो जाती है कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये दो डिफरेंट सेंट्रोमियर्स हैं, हम इनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आके स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, ये स्पिंडल फाइबर दोनों आगे अटैच हुए, इसके ऊपर क्रोमोसोम अटैच हो गए। एनाफेज के अंदर वो उन्होंने शॉर्ट होना शुरू हो जाते, शॉर्ट का मतलब है खींचना शुरू हो जाते हैं। तो सिस्टर क्रोमाटिड्स आर पुल्ड ऑपोजिट पोल, एक क्रोमोसोम एक तरफ चला गया, दूसरा दूसरे की तरफ चला गया, वो पुल्ड होना शुरू हो जाते हैं। देन लास्ट पे आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या है, तो वो बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं। एक जो पेयर है वो एक तरफ चला गया, दूसरा पेयर दूसरे तरफ चला गया। अब इसके दो पेयर बन गए। एट द एंड क्या है कि न्यूक्लियर वॉल इसके अंदर भी अपीयर होना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर भी न्यूक्लियर वॉल जो वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ। और जब न्यूक्लियर वॉल बन गई उसके बाद क्या है कि पूरा एक सेल बनना है, एक सेल से दो सेल बनने हैं, न्यूक्लियस बन गए दोनों के। देन साइटोकाइनेसिस इज द फाइनल प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस क्या था, हमने पहले डिस्कस किया कि
सेल की जो डिवीजन है या साइटोप्लाज्म की जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के अंदर साइटोप्लाज्म किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, वो क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग कि जब दो डिफरेंट सेल्स आपस के अंदर बिल्कुल अटैच हो गए, अटैच थे, अटैच होने के बाद डिफरेंट हो गया, उनके अंदर सेल डिवीजन होगी कंप्लीट, वो दो डिफरेंट सेल बन गए हैं, तो वो क्या साइटोकाइनेसिस है। ठीक है ना, यहां तक हमने कवर कर लिया माइटोसिस। देन नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस के अंदर है हाफ हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो हाफ हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये खासियत रखी है, ये एक प्रॉपर्टीज है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं ना, गैमेट्स ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये हाफ हो जाते हैं इनटू डॉटर सेल फ्रॉम देयर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो डॉटर सेल के अंदर कितने होंगे, 23, बिल्कुल 23 होंगे। जिस तरह वीट के अंदर 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो वीट का एंथर्स होगा उसके अंदर भी 21 क्रोमोसोम्स होंगे, और वीट का जो ओवरी है उसके अंदर भी, जो एग सेल बनेगा उसके अंदर भी 21 क्रोमोसोम्स होंगे। क्यों? क्योंकि दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू। और एक सेल होता है मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल, उसके थ्रू 4 नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनते हैं वो दे आर प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हाफ होते हैं एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट सेल्स। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। सिंस द स्पर्म एंड एग कंटेन ओनली द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम हाफ नंबर सिर्फ मियोसिस के अंदर रहते हैं। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगा क्यों हाफ रहते हैं। मियोसिस के अंदर भी दो डिफरेंट स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के रिजल्ट के अंदर 2 सेल बनेंगे, और मियोसिस 2 है उसको हम माइटोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो गेन आ जाते हैं, हाफ जो होते हैं। ह्यूमन के अंदर 46 सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो स्पर्म सेल और एग सेल है उसके अंदर 23 रह जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस। और मियोसिस के डिफरेंट फीचर्स भी हैं, क्योंकि मियोसिस का अब फायदा भी है। क्यों फायदा है कि अगर इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो एग सेल है उसके अंदर भी 46 होंगे, स्पर्म सेल है उसके अंदर भी 46 होंगे, तो क्या होगा 46 और 46 कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। 92 का 92 से क्रॉस होगा वो और बढ़ते जाएंगे। इस तरह एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह क्या होगा, जब कुछ देर के बाद वो सेल डिवीजन क्या होगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के, वो दे आर अनमैनेजेबल, कि उनको मैनेज ही नहीं किया जा सकता। कि अब 46 क्रोमोसोम के अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं कैरेक्टर्स की, कि दे आर डिफ़िकल्ट टू करेक्टराइज। के इंसान, ह्यूमन बीइंग की क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन है वो भी तक इंसानों ने जो है उसको कोड किया है, अनकोड किया है, कि कौन सा जीन किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, या किस जो करेक्टर का एक्सप्रेशन है किस जीन की वजह से आ रहा है। तो सबसे पहला कि साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम दे आर पुल्ड अलोंग विद देयर लेंथ इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। कि जो सिमिलर लेंथ जो होती है ना, सिमिलर सेम लेंथ के फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स हैं, तो वो एक लेंथ के जो है वो एक तरह बिल्कुल इस तरह आ जाएंगे, इसकी भी हाइट एक जैसी है, सिमिलर फीचर्स और सिमिलर बिल्कुल पेयर कर गए, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। सेकंड नंबर पे मियोसिस का फीचर क्या है कि वो आके बिल्कुल साथ साथ पेयर कर गए। देन क्या है कि एक आर्म जो है, फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं एक आर्म एक क्रोमोसोम का, दूसरा आर्म दूसरे क्रोमोसोम का, दे विल फॉर्म, इस तरह वो क्या करते हैं क्रॉसिंग ओवर के लिए एक्सचेंज ओवर ऑफ सेगमेंट करते हैं, कि ये वाला सेगमेंट इस पे चला जाएगा और इसका सेगमेंट इस वाले पे आ जाएगा। वाइल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर जॉइंड, वो ज्वाइन करते हैं एंड क्रॉसिंग ओवर कर, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल एक जीन के ऊपर जो एक आर्म के ऊपर था हाइट का जीन जो टॉल को रिप्रेजेंट करता, फॉर एग्जांपल
कैपिटल टी था, दूसरे के ऊपर स्मॉल टी था जो रिसेसिव है। तो ये क्या एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगी, जो यील्ड के साथ वो हाइट का था, अब यील्ड के साथ शॉर्ट का चला गया, ठीक है ना। ये क्या एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगी, न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन बन रहे हैं, इट कॉज द जेनेटिक वेरिएशन, ये भी मियोसिस का एक फीचर है। और इसके बाद नंबर थर्ड पे इसका फीचर है रिडक्शनल डिवीजन, कि मियोसिस की एक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको खसूसियत या इम्पोर्टेंस ये भी है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होती है। द क्रोमोसोम्स आर नॉट कॉपीड इन बिटवीन टू डिवीजन्स, कि दे आर रिमेन हाफ, और हाफ को हम कहते हैं हैप्लॉइड। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, दे आर डिप्लॉइड, और हाफ जो जिसके अंदर 23 है एग सेल या स्पर्म सेल, उनको हम कहते हैं ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह पोमेट आपने याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होते हैं। उसी तरह मेटाफेज 1 के अंदर वो ऊपर आके ज्वाइन करते हैं, जो काइनेटोकोर के ऊपर आके जो है सेल्स के अंदर, जब जो है स्पिंडल फाइबर के ऊपर आके जो क्रोमोसोम अटैच हुए, एनाफेज के अंदर वो पुल हो गए, और टीलोफेज के अंदर वो बिल्कुल आपस पे एंड पे चले गए। अब ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुई, वेरिएशन आएगी, क्यों एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, जो एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक कोडिंग का सीक्वेंस था, जो उसका अलील था दूसरे के ऊपर, और जो पहले के ऊपर था वो दूसरे के ऊपर चला गया, ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगी, सिर्फ एक सेगमेंट की एक्सचेंज हुई है, ठीक है ना। इसी तरह प्रोफेज मियोसिस 1 जो है ना, उसके बाद 2 सेल बनते हैं, और इसी उसके बाद शुरू होती है मियोसिस 2, उसके बाद प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। उसके रिजल्ट के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। अब इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, जहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मियोसिस और माइटोसिस का, कि मियोसिस के अंदर क्या चीज़ है और माइटोसिस के अंदर क्या चीज़ है। इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि क्रिएट न्यू सेल्स, दोनों सेल डिवीजन जो है मियोसिस और माइटोसिस के बाद नए सेल बनते ही बनते हैं। मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस के बाद 4 नंबर ऑफ सेल दे आर हैप्लॉइड। उसके बाद फॉलो सेम स्टेप, इन दोनों के अंदर सेम स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। और इनकी एक थर्ड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये दोनों हैं, इनके अंदर एक ही पेरेंट सेल होता है, कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेल है, उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। मियोसिस भी एक सेल से शुरू हो जाती है और माइटोसिस भी एक ही सेल से शुरू हो जाती है। अब इनके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ये 3 हमारे पास क्या होते हैं सिमिलैरिटीज के, ये नए सेल बनाते हैं नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सेम स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया और एनाफेज हो गया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, पोमेट, और ये एक ही सेल से अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 इनकी सिमिलैरिटीज हैं। हम डिफरेंसेस क्या हैं कि जो मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। क्यों? क्योंकि दे हैव एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लेकिन इन माइटोसिस के जिस तरह का पेरेंट सेल होगा उसी तरह का डॉटर सेल होगा। उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो मियोसिस के बाद नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर 4 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वाइल इन केस ऑफ माइटोसिस 2 नंबर ऑफ सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड। और माइटोसिस के अंदर नंबर 3 पे क्या है कि रिकम्बिनेशन नहीं बनते, वाइल इन केस ऑफ मियोसिस दे हैव न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जो वेरिएशन क्रिएट होती है। और नंबर 4 क्या है, सेक्स जो है सेल्स उनके अंदर जो है वो डिवीजन होती है। सेक्स सेल हैव मियोटिक डिवीजन, वाइल बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए माइटोसिस। और अक्कर इन बॉडी सेल्स, ये इनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ इनके डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक आप लोगों को मियोसिस माइटोसिस की समझ आ गई है। तो आप लोगों ने अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो क्लास का जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा सेल नंबर है 033382022149 820 2149। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने वॉइस नोट के अंदर पूछना है, टेक्स्ट मैसेज करके नहीं पूछना आप लोगों ने। ग्रुप के अंदर भी आप लोग का जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आप लोगों ने इसी तरह ही पूछ सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।